Welcome to the today's session, guys. And from today onwards, we are starting a new topic. You can see here games and tournaments. And we are going to continue this topic for around 5 to 6 days, or maybe more than 5 to 6 days, because it is a very big topic. If you want to cover all the kind of sets, then we need at least 5 to 6 days. And yeah, from today, we are going to start a knockout tournament. Knockout tournament होता क्या है सब हम पढ़ेंगे अभी. सो बिफोर वी गो अहेड, डू लेट मी नो कितने लोगों ने अभी तक गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट सॉल्व किया है या फिर देखा हो, कहीं पे भी देखा हो, बता सकते हैं. एनी वन ऑफ यू हैवंट सीन द सेट, गेम्स एंड टूर्नामेंट सेट? नेवर सीन, सर. ओके. ओके, नो वरीज. इफ यू हैवंट सीन एनी सेट, so no worries, you can see in today's session, and in upcoming days you will see lots of sets related to games and tournaments. So as you can see here, these are the students or the people, those who are playing a game and these are winning the trophy. तो ऐसा ही कुछ रहता है हमारा सेट्स रिलेटेड टू. सो लेट्स गो अहेड. व्हाट इज अ knockout tournament? देखते हैं knockout tournament क्या होता है and how we should approach. Yeah, before we go ahead, I would like to introduce this. आप लोग को अगर like if you want our courses, whatever the session we are taking right now in a structured manner, you can look for it. You can just visit prepbee.in. Visit prepbee.in and you can find this course, and it is free for all. You can enroll into it and you will get all the classes in a structured manner. Apart from this, you can visit our YT channel. Okay, just search prepbee and whatever you want, like a QA playlist, or maybe you can say LRDI playlist. Okay, you will get the playlist, and these are also formed in a structured manner. Okay, guys, apart from this, if you are looking for a mentorship, you can look these courses. Here are some courses. You can use this code to get a discount on the courses. Also, I am going to introduce something else. These are for those who want a personal mentorship. And today, like yesterday also, I mentioned this. Like those who are in the session, those who are continuing the session, and those who are coming for a live sessions, I'm creating a group for them. Okay, in you can say 15th July, I will create a group, and I will add those people in that group, and I will give them a guidance. Okay, and we'll take a monthly a group session. So those who are already enrolled into a personal mentorship, like you can say Gautman was there, and there are other students who enroll into personal mentorship. They can also join this mentorship session, or if they have any doubt, I will try to clear it. And it is a group session, not one to one. So if you want one to one session, ऊपर वाला प्लान है भाई, देख लेना. ओके, तो ये तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड यू अ गाइडेंस. मेरी इच्छा हो रही है इसलिए मैं करना चाहता हूँ, गाइस. ठीक. लेट्स कम टू द टुडेस टॉपिक, नॉकआउट टूर्नामेंट. नॉकआउट नॉकआउट टूर्नामेंट्स होता क्या है? अब जैसा नाम है नॉकआउट, वैसा ही काम भी होगा, राइट? सो नॉकआउट मीन्स व्हाट? इफ लेट्स से there was two player, let's name the Pramod and Gothman. Okay, Pramod versus Gothman. These are the two people who are going to play some game, and I was also there. Let's say Sumit is also there in the match, and I was playing with other people. Is anyone else? चल यार, कोई है जिसके साथ मैं मैच खेल पाऊँ यहाँ पे? Yeah, Summer is there. So now you can see here. Now if we are the three, like these, you can see there is two match. If in this match Gothman going to win the match, okay, if Gothman going to win the match, Pramod will directly get eliminated from the tournament. I hope it is clear. If Gothman going to win the match, if he win the match, Pramod directly get eliminated, and he was
not in like a more part like a, he's no more a participant of a tournament, right? He's got eliminated directly. Here, if you can see, if here Samar will win the match and I lose the match, Sumit will lose the match. It means Sumit is also not a tournament participant. He is also going to out of the tournament. तो ये दो बंदे तो बाहर हो गए. Now the next match will be between Gautman and Samar. If one of them win the match, those declare to a winner of the tournament. Okay, and those who are going to lose the match, he she might be going to declare as a, you can say, what we say, second को क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं. Runner up. Okay, runner up, you can say, runner up of the tournament. Okay guys, so this is what a knockout tournament is. Now you thought you, or you might be asked me a question कि चल ये तो ठीक है भाई, नॉकआउट तो समझ गया, पर ये क्यों समझा रहे हो? बिकॉज आई एम टीचिंग दिस टू यू बिकॉज एक हमारे पास दूसरा टूर्नामेंट भी होता है. इफ यू नो द नेम, एनीवन नो, गेस द नेम, दूसरा टूर्नामेंट का नाम क्या है? कोई गेस कर सकता है? राउंड रॉबिन, या, ग्रेट. सो द अनदर टूर्नामेंट नेम वाज राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन. This is what we will learn in next session or maybe day day after tomorrow. मतलब एक और सेशन के बाद हो सकता है, next to next session. So you can assume this. In this tournament, what we will do, चल थोड़ा ऊपर में बेसिक समझाया था, इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम ऐसे करते हैं, let's say if there was a five team. Okay, if there is a five team, the each of the member, like the पांच team है, let's say A B C D E are the name of the team. So here A will play match with all of them. Similarly, B will play match with all of the other teams. Okay, and जब वो सारे का जब मैच हो जाएगा, विन कर लेंगे जितना विन है, देन यू कैन सी द टैली बनेगा, टेबल बनेगा. टेबल में रैंकिंग होंगी कि या ए वाज द फर्स्ट, लेट्स से बी वाज इन द टॉप एंड सी वाज इन द सेकंड, ए वाज इन द थर्ड एंड डी, ऐसे टैली मतलब विनिंग के हिसाब से. यू कैन सी आईपीएल देखा होगा. इफ यू हैव सीन द आईपीएल, आईपीएल में क्या होता है? इनिशियली राउंड रॉबिन होता है. The initial day IPL will be a round robin. Like then they will make a table who is on the top, and the top team will go to a next round, and that round will become a knockout round. और you can say round robin ही होता है कभी कभी तो, right? तो मैं उतना देखता नहीं हूँ आईपीएल, बट फिर भी बता दिया हूँ. इवन दो इफ वी सी द क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप भी होता है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, या डबल राउंड रॉबिन कहते हैं उसे. ठीक है, दैट विल वी से डबल राउंड रॉबिन. डबल राउंड रॉबिन व्हाई? वंस द राउंड रॉबिन फिनिश, आपका टेबल बन गया. जो टॉप टीम होते हैं वो फिर नेक्स्ट, मतलब आगे की स्टेज पे जाते हैं, स्टेज टू बोल सकते हो आप उसे. ठीक है, स्टेज वन से स्टेज टू में जाते हैं. स्टेज टू में जैसे ही जाते हैं वो, अगेन हियर यू विल आल्सो सी द राउंड रॉबिन. सो यू कैन से डबल राउंड रॉबिन वाज देयर. तो ये है कुछ ऐसा, तो उसे हम पढ़ेंगे. अभी तक नॉकआउट पे रहो. तो नॉकआउट समझ में आया? लेट्स से इफ देयर वाज 8 टीम इन अ टूर्नामेंट, to make it more easy to understood, let's say there was 8 team and those are playing a knockout tournament. The team name was something like A, B, C, D, or you can say simply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the team who are going to play a match. ठीक है, अभी अगर मैच खेलेंगे तो इफ आई वुड से जो नंबर वन टीम है जिसका नाम हमने वन रैंकिंग दिया है, वी विल से सीड. सीड कहते हैं हम इसे, सीड. अगर आपने सुना होगा वर्ड तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो हम सुन लो वापस से. वी से सीड. सीड कैसे इसे कहते हैं? तो सीड वन जो रहता ना, सीड वन जो रहता, इट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंकर. लाइक इसकी रैंकिंग हाईएस्ट रहती है. सिमिलरली जो 8 नंबर पे सीड 8, ये लोवेस्ट रैंकर रहता है, मतलब कमजोर टीम है ये. ओके, this one is a strong team or this one you can say like a poor team simply, not very much strong. even the poor भी नहीं बोल सकते हो, डिपेंड करता है. ठीक है,
तो दीज आर द, लाइक ये तो समझ में आ रहा है ना, ये कैसे क्या हम कहते हैं, सीड किसे कहते हैं? क्योंकि जब मैं पढ़ा था मुझे समझ में नहीं आता था सीड क्या है भाई, मैं सोचता था सीड क्या हो गया एकदम से, सीड क्या है? ठीक है, तो वो चीज क्लियर हो गया ना, सीड किसे कहते हैं? बताओ, हाँ ना तो बोल दो। सीड वाला पार्ट क्लियर है? समझ जाओ सी, ये जो है ना, GNT, इसमें जितना समझ में आता है ना उतने सेट तो आप बहुत मजे से बना सकते हो। कुछ सेट बाउंसर भी जाएंगे आपको इन अपकमिंग डेज, यू कैन सी, बहुत ज्यादा बाउंसर जा रहे हैं। बट यस, इफ यू हैव क्लियर योर बेसिक पार्ट, इजी लगेगा, मजा आएगा। तो सीड 1 वाज अ हाईएस्ट रैंकर, सीड 8 वाज अ लोवेस्ट रैंकर, सिमिलरली सीड 2 वाज अ हाईएस्ट बट थोड़ा सा छोटा होगा इससे, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रैंकर यू कैन से। So, so these are the ranking we have given to players. Like seed one was, we can say, highest ranker. Seed eight was lowest ranker. And if you know, in a match also, we can't like say कि highest ranker will play with lowest one. हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हाईएस्ट विल प्ले फर्स्ट, हाईएस्ट प्लेयर देन लोवेस्ट वालों, क्या होता है, आगे आना पड़ता है, तो लोवेस्ट विल प्ले विथ समवन हाईएस्ट वन। एंड चलो, पहले ये बताओ सीड क्लियर है क्या, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। सीड वाला पार्ट क्लियर हो, सीड किसे कहते हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट किसे कहते हैं, तो आगे बढ़ता मैं। तो भाई जिंदा हो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, शर्मा काहे रहे हो? ऐसे शर्माओ मत। क्लियर, प्रमोद क्लियर, एंड बाकी लोग क्या सदमे में चले गए क्या? मतलब सेट भी नहीं पकड़ा भी तो। कैसे समझ ले, बेसिक पार्ट है, ये अच्छे से समझ गया तो इसके बाद इशू नहीं आएगा, बाकी आगे जो रहेगा वो विल ट्राई टू कीप इट मोर इजी वे, इंटरेक्टिव वे। मैं हिंदी बोलूंगा इसमें ज्यादा, रीजन बिहाइंड, हो सकता है इंग्लिश में मैं उतना अच्छे से ना कम्युनिकेट कर पाऊँ, ठीक है, पुअर इन इंग्लिश, मैं खुद खुद ही बोलता हूँ यार। बट विल ट्राई टू मेक इट इन दो, दोनों टाइप से मैं बोल सकते हैं। शिवानी, सीड प्लेयर को बोल, देखो, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। इफ इट वाज देयर कि देयर वाज 8 टीम एंड आई वुड से वन सीड वन, तो आई एम सेइंग दैट सीड वन इज फॉर अ टीम। बट इफ आई विल से 8 प्लेयर्स, लेट्स से इफ देयर इज अ टेनिस गेम, तो अगर मैं 8 प्लेयर्स बोल रहा हूँ तो सीड वन इज, यू आई एम सेइंग द हाईएस्ट प्लेयर, हाईएस्ट रैंकिंग रैंक्ड प्लेयर, ओके, हाईएस्ट रैंक, ये लोवेस्ट रैंक्ड होगा। ठीक है, तो डिपेंड्स कि मैं रैंकिंग किसे दे रहा हूँ, प्लेयर को दे रहा हूँ या टीम को, तो इट डिपेंड्स। ओके, सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स गो अहेड, थोड़ा इसमें और जो डिटेल्स है, बेसिक है, जो जानना चाहिए वो बता देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे अब क्या होता है, एक वर्ड आता है। ओके, क्या डाउट है भाई? ओके, तो देखो यार, यहाँ पे, हाँ, जब भी हम नॉकआउट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉकआउट में हम सीडेड प्लेयर को देखते हैं। वी विल सी हियर सीडेड प्लेयर, ये बहुत ज्यादा हम चेक करते हैं कि कौन से सीड का है वो सीड वन रैंक पे, सीड टू पे, वॉट एवर द रैंक इज हिज, ओके, तो ये हम देखते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है, लेट्स से अगर मैंने 7 को मैच खिलवाया किसके साथ, 4 के साथ, ओके, इफ 7 प्लेड मैच विथ 4, एक ऐसा हो गया, 4 वर्सेस 7 हुआ मैच, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 वर्सेस 7 में 7 जीत गया, 7 वॉन द मैच एंड 4 लॉस द मैच। तो 4 अगर हार गया, 7 जीत गया, इन दिस केस 7 तो 4 के प्लेस पे आ जाएगा, राइट? लाइक इफ, बिकॉज 4 जो था वो तो हार गया, 7 तो जीत गया ना, तो 7 जो आएगा ये 4 के प्लेस पे आ जाएगा ना। आई वुड से कि यार ये तो 4 के बराबर का है भाई, क्यों 4 को हरा दिया। होता ना जब हम फाइटिंग करवाते हैं, अगर लेट्स से, इफ यू आर लाइक WWE अगर देखते होंगे आप बचपन में, मैं तो देखता था इसलिए बता रहा हूँ, इफ आई वुड से द ब्रॉक लेसनर और रॉक की अगर मैं फाइटिंग करवा दूँ, तो ब्रॉक और रॉक में अगर फाइट हो रहा है, अगर ब्रॉक जीत गया, रॉक हार गया, मैं बोल सकता हूँ ना कि यार रॉक मतलब जो है
ब्रॉक के लेवल पर ब्रॉक है, मतलब ब्रॉक को तो हरा सकता है वो। इवन दो लेट्स से ब्रॉक रॉक छोड़ दे तो फिर भी यहाँ पे पकड़ नहीं पाओगे आप। और भयंकर करते इसको, अगर किसने मैच देखा हुआ, जॉन सीना। जॉन सीना वर्सेस क्या कहते हैं उसे, खली, द ग्रेट खली, यू कैन से। ग्रेट लगा देना भाई आगे में। इनके बीच में अगर मैच हो गया, इवन हियर खली अगर विन कर गया, जॉन सीना हार गया, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि यार खली का लेवल तो बहुत बढ़िया, जॉन सीना को हरा दिया। जॉन सीना वो बंदा जो इतने लोगों को हरा के वहां बैठा हुआ है, इतने सारे उसके पास बेल्ट्स है, चैंपियनशिप बेल्ट्स है, जीत चुका है वो, उसे हरा दिया, तो मतलब खली तो उसके लेवल का है। राइट गाइस। तो इट्स यहाँ पे भी हम ऐसे ही जज करते हैं, अगर ये हार गया तो ये जो 7 जीत गया, इसका हम बोलेंगे कि ही वॉज इक्विवेलेंट टू 4। ही वॉज इक्विवेलेंट टू 4। ओके, मतलब हम इससे अज्यूम करें कि ये 4 के लेवल का है। एंड इस केस में जो होता है ना, इस केस को हम क्या कहते हैं, अपसेट। इस केस को हम क्या कहते हैं, अपसेट। अपसेट कब होता है, व्हेन द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर win the match and against a highest seeded player, then we will say the condition was upset। ठीक है, जब भी लोवेस्ट रैंक्ड और लोवेस्ट सीडेड प्लेयर जो रहता है वो हाईएस्ट को हरा के उसकी जगह पे चले जाता है, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, अपसेट कहते हैं। होप अपसेट पार्ट इज क्लियर। भैया बता दो, मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ। इतना सन्नाटा काहे हो गया, छोड़। चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहो भाई। ठीक है, ये पार्ट अगर क्लियर है, अपसेट किसे कहते हैं, तो अगर इन फ्यूचर अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए अपसेट, अपसेट मींस नथिंग बट द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर वॉन द मैच अगेंस्ट हाईएस्ट सीडेड प्लेयर। ठीक है, ये समझ लेना। सो दिस इज द थिंग, लेट्स गो अहेड। इफ द सीडेड पार्ट इज क्लियर, इफ समवन इज आस्क यू इन अ क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ मैच कितना हुआ इसमें, इफ आई आस्क योर क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैच, टोटल नंबर ऑफ मैच कितना हुआ, कैसे काउंट करोगे? एनीवन? बताओगे? चलो, किसी को नहीं पता। यार देखो, जितने मैचेस होंगे उतने ही ना। ऑल्सो एक और कंडीशन है, हम नॉकआउट में अज्यूम करते हैं, लाइक आपको सेट में गिवन रहेगा, इफ इट वाज देयर। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम सेट्स देखते हैं, रीड करते हैं, तो वहां पे ये चीज रहता है कि जो हाईएस्ट प्लेयर है ना, द हाईएस्ट वन, यू ऑलवेज प्ले विद द लोवेस्ट वन। ठीक है, ये हमारे सेट्स में बना हुआ रहता है ये। मतलब 1 प्ले करेगा 8 के साथ, 2 प्ले करेगा 7 के साथ, 3 करेगा 6 के साथ, एंड 4 करेगा 5 के साथ। ओके, तो ये वहां पे मेंशन होगा। अगर ये नहीं है मेंशन, तो हमें अज्यूम करना है कि इस तरह से ही गेम हो रहा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेट में मेंशन रहता है ये। ओके गाइस, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालना है? हाउ शुड वी फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ मैचेस? सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, अगर लेट्स से वहां पे अगर 4 टीम है, 4 टीम के बीच अगर नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा, 1 2 3 4, 1 और 4 मैच खेलेंगे, 2 और 3 मैच खेलेंगे। ठीक है, यहाँ से एक जीतेगा 1 4, लेट लेट से 1 वर्सेस 4 अगर हमने करवाया, 1 और 4 में से 1 आगे गया, 1 और 4 में से 1 आगे गया, 2 और 3 में से 2 आगे गया। अब इन दोनों का एक मैच होगा, तो हाउ मेनी मैचेस देयर, 1 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे। तो टोटल कितने मैचेस हो गए, 3 मैचेस हो गए। 3 मैचेस हुए, नॉकआउट की बात कर रहे हैं। देखो, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वहीं पे ध्यान रखना। लास्ट टाइम एक बार एक बच्चे ने पूछा था मुझे आके, राउंड रॉबिन में पूछ रहा था कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है। तो ऐसा नहीं, जहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान रहना चाहिए आपका। एंड थोड़ा मेरा वॉइस गला में मतलब कुछ हुआ है, पता नहीं मैं, तो थोड़ा सा वॉइस देख लेना यार, मैनेज कर लेना। सो अगर 3 मैचेस हो रहा है, यू कैन सी देयर वाज 4 टीम, देन देयर वाज 3 मैचेस, इट मीन्स अगर 8 टीम है तो 7 मैचेस तो होने ही चाहिए।
right? It means it is nothing but whenever they ask you total number of matches in knockout tournament, you can simply do what? N minus 1. The total N is what? Number of team or player, whatever you have, team or slash player, number of team or player minus 1. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मैच. ये है शॉर्टकट. अगर ऐसे नहीं करना है तो आप उंगलियों पे गिन सकते हो. अगर 8 मैच है तो आप उंगलियों पे भी गिन सकते हो. सिंपली सी यहाँ पे 1 का 8 के साथ होगा, 2 का 7 के साथ होगा, फिर 6 के साथ. तो यहाँ से टोटल, यहाँ से जो विन करके जो टीम जाएंगे आगे, कितनी टीम जाएंगी? 4 टीम जाएंगी, राइट? इन 4 के बीच में मैच होगा. कितने मैच हो जाएंगे 4 के बीच में? 2 मैच यहाँ पे हो जाएंगे. पहले कितने मैच हुए? 4 मैच हुए. ओके. 4 मैच प्लस ये 2 मैच यहाँ पे. अब यहाँ से 2 मैच होंगे, दो में से एक टीम आगे जाएंगी तो यहाँ पे एक और मैच होगा. टोटल कितना हो गया? 7 हो गया. सो instead doing this kind of thing, you can simply do what? N minus 1. That's it. Hope it is clear. It is very interesting topic if you like go, if you know the basic and you can easily solve the questions. अब जब इसका सेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसे क्यों समझा रहा था. Okay guys, hope it is clear. Should we go ahead? Okay. या तो बेसिक तो यही था. एंड इसके अलावा मुझे कुछ अब तो याद नहीं आ रहा है. अब जो भी है सेट में. ओके. चलो सेट में आते, सेट के पास आते. और लेट्स से एक 8 वाले मैच यहाँ पे करवाता हूँ मैं खुद ही एक सेट बना लेता हूँ छोटा सा, टू अंडरस्टैंड इट इन मोर बेटर वे. अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसलिए 8 लोग का ही लगता है. चलो. सो देर वॉज अ 8 टीम इन नॉकआउट, नॉकआउट टूर्नामेंट. यू कैन से टेनिस के, टेनिस नहीं हो सकते, कोई भी मान लो, कोई भी टीम है. नॉकआउट टूर्नामेंट में 8 टीम है. द टीम वॉज रैंकिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. If there was 8 team and they are playing with like in a knockout tournament, and the condition was team one will play, or you can simply say in short, इससे अच्छा लिख लो, highest seeded player will play with lowest seeded player. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे यही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के लिए दे सकता हूँ, दैट इज 1 वर्सेस 8 और 2 वर्सेस 7. ऐसे ही चलते रहेगा ये. ठीक है, समझ जाओ. एक चीज रुको, एक थोड़ा साइज का कम करने दो यार. ओके. तो ये अगर आपको क्लियर है यहाँ पे, ये इसके साथ खेलेगा. ठीक है, इतना क्लियर है. मतलब 1 जो खेलेगा 8 के साथ, एंड 2 खेलेगा 7 के साथ. सिमिलर 3 विल प्ले विथ 6. नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज, if if 3 will win the match, 3 will win first match. ओके. तो ये राउंड, ये सारे राउंड के लिए एप्लीकेबल है. इन राउंड 1 ऑल्सो, in round 2 also. Okay, similarly in round 2 also the lowest seeded player will play with the highest seeded player. Okay. If 3 will win first match, or you simply say simply एक और काम कर लो. चलो हटाओ इसे. If 3 will win the match, win the tournament. If 3 won the tournament, 3 won the tournament,
with whom he play, with whom he play the final match. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, टाइम पास के लिए मैंने बना लिया भाई, कैसे बन गया पता नहीं। तो ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा, किसके साथ खेल सकता है, कितने लोगों के साथ, मतलब जो जो आपको लगता है। ट्राई इट एंड डू लेट मी नो। गौतमन वन, सो ओनली वन प्लेयर, इतना श्योर तो मैं भी नहीं रहता हूँ भाई। लेट्स सी, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ, लेकिन ऐसे टीटा तो नहीं आएगा। यू विल हैव फोर ऑप्शंस, but I given you Tita to know like how many people are able to solve or get some number. So Gautman was saying one, others are trying maybe. Let's see. Let's see here. Let's change the paint color. Yeah. So as I told you, there was a player one, two, three, four, five, six, seven, and eight. One will play with eighth one, right? Two will play with seven. Three will play with six. Four will play with five, right? If you see here, if you see here, sum of one or eight, what is it? Sum of 1 and 8. Is it equal to 9? Here also sum of 7 and 2. See this 7 and 2. It is also equal to 9. Similarly 3 and 6. It is equal to 9. Either 4 and 5. It is equal to 9. You can see the sum of the two team was always equal. Right guys? Okay. So if the sum is equal, I simply say in the first round, and here because it is not mentioned like which team is going to win or is there upset or not. If nothing is mentioned about upset, I will not assume that there is one upset. I simply assume what? If there is nothing mentioned about upset, I simply say yes. In this match, the one versus eight, eight lost the match and one won the match. Similarly, two into seven, seven lost the match, two won the match. Six lost the match, three won the match. Five lost the match, and four won the match. Because nothing is here mentioned, right? If I would say that there was an upset, then you have to think about yeah, there is upset and who got an upset. We need to know that also. So if nothing is mentioned, you can simply say there is no upset. If nothing is mentioned about upset, right? So as you can say, the four team who are going to be in a next round, and this one is round one. In round two, you can see there is only four team. That is one, two, three, and four. Now here you can see the sum of these two teams is equal to five. The sum of these two is equal to five. Again, here also these are not going to won the match. So I left with it, and because I mentioned here, I mentioned, let's say here I mentioned three won the tournament, and because three won the tournament, it means now you have to assume like चलो यहाँ तक तो ठीक था कि अपसेट नहीं है, मुझे पता चल गया, but because it is clearly mentioned in the question in round two, if you see round two, like one, two, three, and four, these are the player. So one will going to play with four, two will going to play with three. The sum you can see here also there is a five in sum, right? Right or wrong? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। चलो यार तुमको और बेटर वे में समझाता हूँ, अगर ये भी ना समझ रहा तो। रुको, ये छोड़ो, ये अपसेट वाला पार्ट छोड़ दो। अब सोचो कि हमने कुछ बताया ही नहीं है। चलो और बढ़िया कर दिया मैंने। नथिंग, यू हैव टू अज्यूम नोथिंग, ये अपसेट भी भूल जाओ, कुछ भी मत करो। सब मान के चलो, अपने अकॉर्डिंग करो। दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, दिस सेवन, दिस इज एट। ओके, सो नाउ हियर anyone can win. I don't care about who was going to win, but I was definitely for sure say that this player, the third one, is going to win. Because if he is not going to win here, how could he go to a final round? And as it is mentioned, he won the tournament. So he must be going to the next round. It means six going to lose the match, right? So six.
if there in the option, if you have a like a say like, let's say there is our four option and it was mentioned there six is there, you can simply eliminate it, right? So I'm just teaching you a way like how to solve like in we have sets, we have sets, नहीं तो बोलूंगा यार sets लाया नहीं, इसने मजाक कर रहे हैं बैठे बैठे. So I have come with a set. See this is set. बहुत सारे set है वैसे, don't worry. We'll go to a set, but I would like to like teach something here. और मैं समझ जाए तो बेटर रहेगा, बड़े पे आप इजीली कमांड कंट्रोल कर पाऊंगे, उसे अच्छे से पकड़ पाऊंगे उसको. So you can easily eliminate the six if there is an option, right? So here I don't know who is going to win, either one or seven, either one or you can say eight. कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, विन विन कोई भी हो सकता है, विन कोई भी कर सकता है. मिटा दो इसको, रुक जाओ. Let's erase this part to make a round two. Okay, when in a round two, I simply say one is going to play with eight. So there was possibility of any one of the one or eight going to be a winner of this match. Here also two or seven, any one of them will going to be in the next round. Simply three तो clear है भाई, ये तो अकेले जा रहा है, six तो नहीं आएगा. Here anyone from four or five going to win the match, right? Now here in this round, I am sure like that these two people going to play a match and these are the people going to play a match. It means whosoever going to play a match with like three here in this round, they is not going to be in a final round. Like round थ्री में तो जाएगा नहीं. तो यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? टू एंड सेवन नॉट गोइंग टू बी इन राउंड थ्री, राइट? क्योंकि यहाँ पे थ्री को विन जीतना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, थ्री को जिताना ही पड़ेगा. जीतेगा तभी तो आगे के राउंड में जाएगा, राइट? दिस इज अ राउंड थ्री. इन राउंड थ्री में क्या होगा? राउंड थ्री में वन एट फोर फाइव, ये कोई भी हो सकते हैं, लाइक इनमें से कोई दो या फिर इनमें से कोई दो. Any one of the people will going to play in this round, and from here it is a three. So the final round, this was the final round. Okay, this was the final round. In final round, three will play with a match among one of these. Okay, like you can say either play with one, either play with eight, either play with four, either play with five. So these are the possibility that three is going to play in final round. Hope it is clear. अब एक चीज मैं बताना भूल गया था पहले ही, बट अभी फिर से बता देता हूँ. You know how to calculate rounds. How many rounds are there? You have to know how to calculate rounds. So if someone asks you, like there is a question, you can like expect in a set, how many rounds are there? How many rounds are there? So how to answer this for knockout tournament? The simple is, most of the time they have give you a value in a 2k form. 2k form simply means here you can see 8, 2 का multiple है. Okay, so the value is should always be given to in the form of 2k or multiple of a 2. Simply you can say. So अगर 2 के फॉर्म में आपको गिवन है तो सिंपली आपके जो नंबर ऑफ राउंड होंगे वो के राउंड्स होंगे. सॉरी यार, के कैसे होगा? सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड. नंबर ऑफ राउंड शुड बी 2 के 4. गड़बड़ी क्या किया मैंने? नॉकआउट टूर्नामेंट. दिस वाज द राउंड 1, दिस वाज द राउंड 2, दिस वाज द राउंड 3 एंड वी कैन से फाइनल राउंड. देयर इज अ प्लेयर 8, 4 4 राउंड होने चाहिए. हाउ शुड बी? यार इसका शॉर्टकट में याद नहीं आ रहा. किन मोमेंट. ओ सॉरी 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 सॉरी, ये गलती कर दी मैंने. ये गलती मैं ये 2 के बोल दिया. ये टू टू द पावर के फॉर्म में रहता है, सॉरी. ठीक है, दिस मस्ट बी लाइक जो भी आपकी वैल्यू है ये टू टू द पावर के फॉर्म में होगी. ओके, जितना पावर है उतने राउंड्स हो गए. ओके गाइस, ठीक है. यू कैन सी हियर टू टू द पावर, ये कितना है? टू टू द पावर थ्री है, राइट? एट इज नथिंग बट टू टू द पावर थ्री. सो टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे यहाँ पे? थ्री राउंड. एंड जो थर्ड राउंड होगा वो कैसा होगा आपका? फाइनल राउंड.
होप इट इज क्लियर। K-1। अरे वो तो नंबर ऑफ प्लेयर था, सॉरी नंबर ऑफ, क्या कहते उसको, नंबर ऑफ मैचेस था वो। ये समझा इतना, ये क्या था ये कैसे होगा, चलो आगे सेट सॉल्व करेंगे आपको समझ जाएंगे और अच्छे से। बट ये समझा ना कि थ्री किसके साथ खेलेगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। टू whom थ्री इज गोइंग टू प्ले द मैच, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। सो लेट्स सी, आगे हम सॉल्व करते हैं अच्छे से और ट्राई करूंगा मैं अच्छे से समझाने की। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है बेसिक्स में, वो मैं एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े कुछ, क्योंकि डाउट मुझे लग रहा है वहाँ पे आपको आ रहा है। तो अगर टोटल टीम पूछा है या फिर टोटल मैचेस, ओके, टोटल मैचेस अगर पूछा है आपको, दिस इज नथिंग बट n-1। व्हाट n? n सिंपली नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक टेनिस गेम, तो प्लेयर बोल सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन क्या खेल रहे हो आप, नंबर ऑफ टीम होगा या फिर नंबर ऑफ प्लेयर बोल सकते हो। ओके, टोटल मैचेस, दिस इज फॉर टोटल मैचेस। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू नंबर ऑफ राउंड्स, then number of rounds should be, it is nothing but 2 to the power, it is value, okay, जो वैल्यू रहेगा वो k रहेगा, ओके। एंड k, हाउ k वी अराइव टू k, दिस k। तो टोटल प्लेयर जो रहते हैं, टोटल प्लेयर, प्लेयर और यू कैन से टीम, प्लेयर और टीम इज इक्वल टू नथिंग बट 2 टू द पावर k। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहेगा आपको। एक केस रह सकता है आपका, अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है आपको, व्हाट इफ जो हमारी वैल्यू है 2 टू द पावर k के फॉर्म में है ही नहीं, इन दैट केस क्या होगा, राइट? ये क्वेश्चन तो आया होगा। लेट्स से 8 की जगह मुझे वैल्यू यहाँ पे 9 आ गया, एंड 9 इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर k। इन दिस सिनेरियो दे विल गिव यू ऑप्शन, ठीक है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन रहेगा कि जो 8 प्लेयर अलग हुए, एक प्लेयर अलग हो गया, तो वन ऑफ द प्लेयर गोइंग टू बी डायरेक्टली एंटर टू द राउंड, एंड इसे क्या कहते हैं हम, यू कैन से यार, रुक जाओ, अच्छा सा नाम है इसका। हम्म, हम्म, क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, कुछ अच्छा अच्छा वर्ड है इसके लिए, बट मुझे याद नहीं आ रहा। इफ एनी वन ऑफ यू रिमेम्बर, डू लेट मी नो। वो सीधा मतलब नेक्स्ट राउंड में आप उसको ये करते प्रमोट कर देते हो, ओके। वन, एक जो प्लेयर रहता है, जो हाईएस्ट सीडेड प्लेयर रहता है, सबसे ज्यादा पावरफुल, उसे हम नेक्स्ट राउंड में डायरेक्टली हम उसे वहां पे भेज देते, सो दैट जो हमारे जो कंफ्यूजन ना हो, बाकी क्या टीम हम बराबर स्ट्रक्चर कर पाए, तो ये वहाँ पे मेंशन होगा। एंड ये बहुत रेयर केस में होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। जहाँ पे होगा वैसे हम सेट करेंगे, दैट टाइम यू विल नो कि क्या करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। बाय, या बाय बाय बाय, बाय बोलते हैं गाइस। थैंक यू श्वेता। बाय बाय बोलते हैं, ठीक है, बाय मिल दे देते हैं उसे, बाय, सीधा नेक्स्ट राउंड में चले जाता हूँ। मतलब राउंड वन नहीं खेलना है इसको, सीधा नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, बाय मिल गया इसको, ठीक है। होप इट इज क्लियर। अगर इसका मैच ही नहीं होता किसी के साथ, जो टॉप रैंक पे जो प्लेयर रहता है उसका मैच नहीं होता, सीधा बाय मिल जाता, एंड बिकॉज ऑफ बाय वो सीधा आगे में जाएगा, यहाँ पे खेलेगा ही नहीं वो, बच्चों के साथ नहीं खेलता बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आते हैं सेट पे। बहुत हमने प्रवचन कर लिए, डिड a लॉट्स ऑफ टाइम पास, नॉट टाइम पास मतलब ज्ञान, काम की बातें थी। Now here you can say there is the 32 players seeded from seed 1 to seed 32 participate in a knockout टेनिस टूर्नामेंट। चलो ठीक है, क्लियर क्लियर बताया गया, टेनिस टूर्नामेंट है, और हम प्लेयर की बात कर रहे हैं। सीड 1 इज द हाईएस्ट सीड, सीड 32 इज द लोएस्ट सीड। द टूर्नामेंट इज प्लेड इन 5 राउंड्स, ओके, ये भी बता दिया, अरे भाई इसने तो राउंड भी बता दिया, दिक्कत मतलब, देखो यार इतना कौन इतना हेल्प करता है बच्चों का। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स।
फर्स्ट राउंड द प्लेयर विद द हाईएस्ट सीड plays with the player with the lowest seed. ओके सेम मैनर, मतलब वन प्ले करेगा 32 के साथ, टू करेगा 31 के साथ. So this is what they have mentioned in the first round. Similarly, you can, and so on, so on. In second round, the winner of the match one, okay, the match one का जो winner था, let's say यहाँ पे से कोई एक winner हुआ होगा, ठीक है. तो let's say यहाँ से वन विनर हुआ, यहाँ से 31 विनर हुआ. ऐसे ही मतलब बहुत सारे विनिंग हुए होंगे, जो भी हो गया आप निकाल सकते हो. तो विद द विनर ऑफ मैच 16. नाउ सी हियर गाइस, ये थोड़ा सा अच्छा है इनने बोला. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 32 प्लेयर्स है राउंड वन में. राउंड टू में यहाँ से आधे बंदे ही तो जाएंगे, आधे तो हार जाएंगे ना. मतलब 32 जो प्लेयर है, 16 टीम मैच हुआ इन लोग का, राइट. 16 मैचेस होंगे दोनों के बीच में, मतलब एक प्लेयर वन है तो एक 32 है, तो इनके बीच में से एक ही प्लेयर तो आगे जाएगा. टोटल 16 प्लेयर जो है वो राउंड टू में जाएंगे. तो राउंड टू में अगर 16 प्लेयर जाएंगे, तो जो फर्स्ट रैंक पे, मतलब जो फर्स्ट मैच में जो प्लेयर जीता था, वो 16th मैच में जो प्लेयर जीता है उसके साथ गेम खेलेगा, ठीक है. एंड देन वन ऑफ देम, दोज हु इज गोइंग टू विन और लूज द मैच, ही शी विल गोइंग टू प्रमोट. जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो बाहर जाएगा, ठीक है. सिमिलरली, आगे क्या बोला उसने, सिमिलरली विनर ऑफ मैच टू गो टू, ओके, द सब्सिक्वेंट राउंड फॉलो द सिमिलर पैटर्न. अब इसके बाद जो भी राउंड है, राउंड थ्री जो भी आने वाला है, या सेमीफाइनल यू कैन से, और फाइनल्स, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. मतलब हाईएस्ट सीडेड प्लेयर विल प्ले विद लोएस्ट सीडेड प्लेयर. और यू कैन सिंपली से, हाँ वही बात है, मतलब समझ लो, समझा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है. अब ये मत बोलना लेट से वन और 16th, 16th पे जो बंदा है, ठीक है, 16th पे जो बंदा होगा, लेट से यहाँ पे जो बैठा हुआ है, ही इज द पर्सन ऑफ अ लोवेस्ट सीडेड प्लेयर. और यू कैन से सिंपली, टू हो गया यहाँ पे 15. जो टू पे बैठा है ना, ये 31 नंबर वाला बंदा बैठा है. स्टिल बिकॉज ही इज इन द सेकंड पोजिशन, इट मीन्स ही इज द हाईएस्ट सीडेड प्लेयर नाउ. नाउ आई विल कंसिडर हिम एज अ हाईएस्ट सीडेड प्लेयर. भले ही उसका नंबर 31 है, बट हम उसे हाईएस्ट सीडेड प्लेयर कंसिडर करेंगे, बिकॉज उसने टू को हरा के यहाँ पे आया है, ठीक है. एंड नाउ वी विल, लाइक, 31 will play with 15th rank people. Hope it is clear. So this is the set. I hope the set is clear to all of you. अगर यहाँ पे कुछ पढ़ना है तो एक बार रीड करो, देन आई विल कम टू क्वेश्चन पार्ट. तो आप ट्राई करो एक बार, लेट्स सी कितने लोग बना पाते हैं. तो सेशन स्टार्ट हुआ तो देयर वाज 9 people, मोर देन 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड नाउ वी आर ओनली 7. आधे लोग तो ऐसे ही हिम्मत हार जाते हैं. Okay, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में किधर अपसेट लिखा दिया और बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर सकते हैं. देखो, क्वेश्चन में अपसेट लिखा होगा, बाय डिफॉल्ट डोंट कंसीडर इट. क्वेश्चन में अपसेट लिखा होगा, ठीक है, कंसीडर मत करना खुद से, जब तक वहां मेंशन ना हो. इसलिए मैंने पहले ही बोला, मतलब अज्यूम ही मत करो, कुछ कुछ मत करो अज्यूम. अगर वहां मेंशन है देन इट्स ओके, नहीं है तो लेट इट बी. क्वेश्चन में मेंशन होता है वैसे तो, आगे आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, वहाँ पे मेंशन होगा, अगर होगा तो. ओके, क्वेश्चन शो करूँ कि अभी भी पढ़ना है? शुड आई गो अहेड? ओके, चलो फिर दो क्वेश्चन देखो एंड बनाओ.
लेट्स सी कितने क्वेश्चन बनते हैं आपसे. ट्राई दिस. यू हैव अ 5 मिनट टू सॉल्व. लेट्स सी कितने बना पा रहे हैं आप. मोर देन 5 मिनट ले सकते हो, चलो 6 मिनट ले लो. चलो आई थिंक आई हैड गिवन यू इनफ टाइम. इतने में तो बन जाना चाहिए था. सो अमित का बन चुका है. गौतमन, अदर्स, श्वेता, क्या हाल है बताओ. कितने बने. समर बन रहा है या फिर बस बैठे हो. लेट्स सी द क्वेश्चन. दिस फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या होता है इस काइंड ऑफ लाइक इन दिस गेम्स एंड टूर्नामेंट सेट्स, most of the time you have to solve question wise. You can't solve it in a single match और एक ही बार में आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता. चेंजेस मतलब कंडीशन हम हर बार चेंज होते हैं. लाइक यू कैन सी हियर इफ. यहाँ पे इफ है, यहाँ भी इफ है, यहाँ भी इफ है, मीन्स 3 बार अलग कंडीशंस है. यहाँ पे भी who could say player facing blah blah blah. You can assume the same. Now यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हमें, if the player seeded 27 won the tournament, seeded 27 won the tournament, then which of the following players cannot be the runner up? If seeded player 32 7 27 won the tournament, then which of the player cannot be runner up? Runner up नहीं है means what? At the end he is asking कि जो लास्ट मैच हुआ था, द फाइनल मैच, इसमें 27 के साथ दूसरा कौन सा प्लेयर था. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. जो भी यहाँ हारा होगा, दोज हुसोएवर लोज द मैच एट द फाइनल, ही लाइक वही प्लेयर जो है, दैट प्लेयर और दैट लाइक a टीम विल गोइंग टू बी अ रनर अप, राइट. तो ये पूछ रहा है इसमें से रनर अप कौन होगा. अगर हम ये ढूंढ ले रनर अप कौन होगा, तो हमें पता चल जाएगा ना रनर अप कौन नहीं होगा. ऑल्सो यू कैन सिंपली से कि रनर अप कौन नहीं होगा उसे ही ढूंढ लो. हो सकता है कि कुछ लोगों ने मैच पहले ही खेल लिया 27 के साथ यहाँ, राइट. लेट्स सी, लेट्स सॉल्व. कैसे करेंगे सॉल्व. तो मैं आई वुड लाइक टू टेक अ न्यू पेज. यहाँ पे करते हैं. ओके. सो एज यू नो वी हैव 32 प्लेयर्स. मैं सारे तो नहीं लिखूंगा, ठीक है. सारे लिख दिया तो हो गया. कुछ लिख देते हैं यहाँ तक, 5 तक लिख दो चलो. फ्रॉम हियर ऑल्सो वी हैव 27, 28, 29, 30, 31 and 32. इन राउंड 1 सबसे पहले तो कितने राउंड होंगे तो आपको पता चल गया होगा. 32 इज नथिंग बट 2 to the power 5. 2 to the power 5 क्या होता है 32. इट मीन्स देर वॉज 5 राउंड. ओके. तो 5 राउंड होंगे, मुझे पता चल गया यहाँ से. ना राउंड 1 में क्या होगा, वन जो प्ले करेगा वो प्ले खेलेगा किसके साथ, 32 के साथ. 2 is going to play with 31, 3 going to play with 30. Similarly, 4 going to play with 29, 5 going to play with 28. So the sixth one the player is going to play with 27. Now आप ऐसे सबका थोड़ा देखते नहीं बैठोगे कि कौन किसके साथ प्ले कर रहा है, राइट. वन किसके साथ कर रहा है ये. इसमें सिंपल ट्रिक है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर द ट्रिक इज you can simply add the first and last. You can see the sum of 1 and 32, which is 33. So round 1 में जो sum है 33 बन रहा है, right guys. So sum in round 1 is 33. You can add any two team like 2 and 31. The sum is 33. Simply, if 27 is going to play with any team, the sum should be equal to what, 33. माइनस कर दो यहाँ से यार 33 में से 27, आपका टीम यहाँ मिल जाएगा. तो 33 में से अगर मैं 7 को माइनस कर, तो आई विल left with a 6. So 6 is going to play with 27.
ठीक है, ये समझा। सिक्स किसके साथ खेलेगा? 27 के साथ। एंड अगर सिक्स 27 के साथ खेल रहा है, तो हियर वी आई एम श्योर कि सिक्स तो हार गया होगा, 27 जीत गया होगा। ओके। नाउ इन राउंड थ्री, सॉरी राउंड टू, राउंड थ्रू में जब जाएंगे हम, तो प्लेयर की लिस्ट कैसे होंगी? आई डोंट नो अबाउट वन टू थ्री कौन जीता है यहाँ पे, तो आई एम टेकिंग लेट इट बी एज इट इज। बट नाउ आई एम श्योर कि जो सिक्स पोजीशन है ना, दिस सिक्स पोजीशन, यहाँ पे अब 27 आके बैठ गया है। राइट गाइस, सिक्स पोजीशन पे कौन आके बैठ गया है? 27 आके बैठ गया है। Okay, and in round two, if you can see, let's say there was 16 team. In the round two, there was 16 team, like one, two, three, up to the, you can say 16 team. Now here you can see sum of 1 and 16. It is equal to nothing but 17. Similarly, 2 and 15. इसका sum भी कितना आएगा? 17. So here the sum change and it is now 17. ठीक है, पहले कितना था? 33 था। हर इसमें देखो, हर राउंड में सम चेंज हो जाएगा, तो वही मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब सिंपली अब यहाँ करना क्या आपको, यहाँ मुझे चेक करना है। तो अब देखो, आई नो दैट हियर इज द 27 नंबर प्लेयर, बट नाउ बिकॉज ही won the match against sixth number player, he is at the sixth position and he is now highest ranked, like, or you can say highest seed, okay, player. So अब जो सिक्स नंबर पे होगा प्लेयर, ये किसके साथ प्ले करेगा? ही मस्ट बी गोइंग टू प्ले विथ समवन टू मेक अ इक्वल टू 17, तो यहाँ पे 11th होगा, उसके साथ प्ले करेगा। राइट? राइट और रॉन्ग? बोलते जाओ गाइस, कुछ ना कुछ तो बोलते जाओ। 11th रैंक पे जो भी प्लेयर होगा उसके साथ ही प्ले करेगा, गेम खेलेगा, क्योंकि सिक्स, सिक्स प्लस 11 विच इज इक्वल टू 17। नाउ इफ आई सी 11th रैंक, यहाँ पे तो कोई भी हो सकता है ना, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। मे बी 11th जो यहाँ पे प्लेयर था 11th, वो हो सकता है। 11 ने जिसके साथ खेला होगा मैच, वो भी हो सकता है। 33 था, मतलब 11 ने किसका किसके साथ खेला था? 22 के साथ। तो इधर 11 और इधर 22, राइट? तो वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी हियर इन दिस मैच। So in this match, one of the, like, either to be 11 or 22. So because 27 is going to win the match, because इससे तो हमें 27 को तो हमें आखिरी तक लेके जाना है, तो ये दोनों तो यहीं पे हार गए। These two people lose the match here in this round. Hope it is clear. And because ये सिक्स्थ पे है, तो ये सिक्स्थ पे ही रहेगा, हाईएस्ट सीडी पे नहीं। अगर मान लो 11 पे, तो नहीं चला जाएगा। ओके, इट इज क्लियर ना कि 11 पे क्यों नहीं जाएगा? देखो, पोजीशन हम हाईएस्ट लेते हैं, राइट? अगर मैं हाईएस्ट पोजीशन पे हूँ, अगर मैं हाईएस्ट लोवेस्ट वाले ने अगर हरा दिया, ठीक है यार, लो लिख लो, लोवेस्ट को अगर मैंने हरा दिया, तो मैं हाईएस्ट से नीचे थोड़ी आ जाऊंगा, मैं तो यहीं पे बैठे रहूंगा ना। ये सिक्स्थ पे है, इसने 11th को हराया, तो सिक्स्थ पे ही रहेगा। ही इज नॉट गोइंग टू बी इन 11th पोजिशन, राइट? तो ये मत पूछना, कभी आके पूछ लो कि ये 11th पे क्यों नहीं जा रहा, जब सिक्स, मतलब 27 से सिक्स्थ पे आ गया, तो 11th पे क्यों नहीं जा रहा? तो डोंट आस्क मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट इन राउंड फोर, सॉरी राउंड थ्री, मैं क्या बोल रहा हूँ, राउंड फोर क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक राउंड आगे चल रहा हूँ लगता है। इन राउंड थ्री, now in round 3, here you can say here is 32 team, here is 16 team। राउंड थ्री में तो इसके आधा हो जाएगा, 8 टीम। तो सम विल गोइंग टू व्हाट? 1 + 8 इज नथिंग बट 9। हियर द सम इज गोइंग टू बी अ 9, एंड इट इज इन अ सिक्स्थ पोजीशन, क्योंकि मैं सिक्स्थ का ही चेक कर रहा हूँ। सिक्स्थ पे कौन बैठा है मेरा? 27। ओके, ही विल प्ले विद द प्लेयर टू मेक द सम इज 9। तो ये किसके साथ खेलेगा नाउ हियर? किसके साथ खेलेगा कि इसे 9 बना ले? चलो इतना ही बता दो, किसके साथ खेलेगा 9 बनाने के लिए? कौन से टीम नंबर के प्लेयर के साथ खेलेगा? कौन से? 27 को भूल जाओ, समझो सिक्स, सिक्स की बात चल रही है। ठीक है, 27 को भूल जाओ, सिक्स से है, मुझे 9 बनाना है। आई हैव टू मेक द सम 9 विथ whom he is going to play the match. Do let me know. Obviously he will going to play with the third person, the person who is in the third position, right? Now I have to check who is at the third position. अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि थर्ड पोजीशन पे कौन है भाई। I have to check who is the person in third position. So you have to look at from round 1। तो थोड़ा सा दिक्कत है,
देखो इजी है, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू। इट लुक्स लाइक कि यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट नो, इट इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग। इफ यू कैन like go with your, like in your pace, you can solve it very quickly. Okay, so you can see here now. Here in first round, the third person will play with the person to make a 33. He will play with a 30th ranked person. So here from this round, maybe third 3 or 30, these are the two people going to be in the next round. Okay, any one of these two going to be in next round. Now in here round two, the third ranked person, whosoever in the third rank, to make it 17, to make it 17, okay, to make it 17, he will going to play with the person with rank 14. He will going to play with the 14th rank person, right? So 14th rank, now I have to see who is the winner of the 14th rank. तो अब यहाँ 14th है, 14 है, अब मुझे इसे 33 भी तो बनाना पड़ेगा. आई हैव टू चेक हियर इन राउंड वन, इज इन द 14th रैंक, हु इज द विनर, लाइक इधर 14th विनर और समवन एल्स विनर विन द मैच, वॉन द मैच. तो 14 यहाँ पे मुझे 33 बनाना है. तो आई नो कि 29 एंड 14 विल मेक 33. सॉरी, 29 नहीं, 19 and 14 will make a 33. So in the 14th rank, I know there is two possibility. One is 14 or 19. In third position, there is two possibility, 3 and 30. So इसमें से अब चार जो है, अब यहाँ पे जो मैच हुआ था इन राउंड टू, जो मैच हुआ है, दिस मैच मस्ट बी बिटवीन एनी ऑफ द टू प्लेयर इन दिस फोर, राइट? एंड वन ऑफ देम विल गो इन राउंड थ्री. गाइस ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ जो मैच हुई है, ये चारों में से किसी एक का हुआ होगा यहाँ पे मैच राउंड टू में. इन चारों में का मैच से किसी एक का मैच हुआ होगा राउंड टू में. अब इन चारों में से कोई एक जो जीता होगा वो यहाँ पे आएगा. सॉरी, मतलब चार में से, मतलब किसी दो का हुआ होगा मैच यहाँ पे राउंड टू में, किसी एक ने विन किया होगा मैच और यहाँ पे आया होगा. सो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? देर आर पॉसिबिलिटी लाइक 3, 30, 14, 19. दीज आर द पॉसिबिलिटीज दोज आर गोइंग टू प्ले विथ at like a third position, who is going to play with a sixth person. भाई जिंदा हो? भाई नहीं समझा तो पूछ लेना यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शर्माना नहीं, पूछ लेना, मैं बता दूंगा. ठीक है. अब ये जो भी यहाँ पे खेल रहा हो, यहाँ पे ये कोई भी खेला हो, आई डोंट केयर, ये तो हार गया होगा, क्योंकि विनर इसे ही बनाना है मुझे. नाउ दिस इज माय फोर्थ राउंड. यहाँ पे 8 प्लेयर थे. नेक्स्ट राउंड में कितने प्लेयर चले गए? 4 चले गए. एंड 6 वॉज देयर. तो 6 अगर यहाँ पे है तो नाउ सी, नाउ 6 कहाँ पे आ जाएगा? थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, बिकॉज ही like defeated the third number player and he is now at the position of third. So 27 ka now new position should be a third position, right? And here is going to be a 27 because he defeated higher seeded player. So he is going to sit at the third position now. Hope it is clear. And I know कि next round में कितने हैं? 4 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1, 2 and the third one and fourth, ये 4 प्लेयर हो गए. अब जो थर्ड बंदा है ना, इसका गेम होगा 2 के साथ. इफ यू सी, 1 विल प्ले विथ 4 एंड 2 विल प्ले विथ 3. समझ रहा? हाँ ना, कुछ तो बोलो. देखो ये, अभी मैं इसमें शॉर्टकट बताऊंगा, एक एक बहुत इजी शॉर्टकट बता दूंगा, बट अभी के लिए इसको समझो. अभी इतना सॉल्व, मतलब मैं समझाने के लिए तो डिटेल जा रहा हूँ. एक बहुत इजी शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको इतना कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको एक बार में काम हो जाएगा. ठीक है, एक बार मतलब नॉट एक बार में, बट आ जाएगा. बट अभी के लिए समझो ये. नाउ हियर यू कैन सी कि अब ये जो है ना, टू और थर्ड, इस पोजिशन में यहाँ पे कोई ना कोई टू के पास जो भी प्लेयर होगा, जो भी प्लेयर्स होंगे टू में, आप सेम वे में निकाल सकते हो कि मैं पूछ लूँ टू में कौन सा होगा इस राउंड में, राउंड फोर में, हु इज गोइंग टू प्ले विथ थर्ड, थर्ड रैंक प्लेयर और 27. तो आप ये निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये निकाला था, यहाँ पे ये निकाला, तो आप निकाल सकते हो, राइट? तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ पे ये हारेगा, ये मुझे पता है. नेक्स्ट राउंड में कौन जाएगा? या तो 1 जाएगा या तो 4 जाएगा.
तो फाइनल जो राउंड होगा, इन फाइनल राउंड 3 इज गोइंग टू प्ले थर्ड रैंक लाइक 27 जो है, ये प्ले करेंगे किसके साथ, इधर 1 और 4। ठीक है, बट 1 पे कितने पॉसिबिलिटीज है, 1 पे कितने लोग आ सकते हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा। 4 पे कितने लोग आ सकते हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा। दीज आर द पॉसिबिलिटीज विथ whom थर्ड रैंक पर्सन गोइंग टू प्ले। नाउ ये कैसे निकालोगे, तब ट्रिक ये था। ठीक है, इतना कुछ अब सॉल्व नहीं करना है। अब ट्रिक देखो क्या है, ये समझा है कि मिटाओ इससे, कि यहाँ अभी तक यहीं पे फंसे हो। ओके, अगर समझा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसे मैं मिटाता हूँ इसे। चलो अब ट्रिक से कर लेते सॉल्व। तो ये बताना जरूरी था कि कैसे मैं निकालने वाला हूँ आगे, सो दैट यू शुड नो क्या होगा। अब चलो शॉर्ट में आते एकदम क्विक मैनर में, एंड पे आएंगे सीधा। राउंड 1, आई नो सम इज 33 बिकॉज इन दिस राउंड देर इज 32 प्लेयर। राउंड 2, लेट्स राइट इट हियर, पहले ये कर लेते हैं सो दैट इजी रहेगा। राउंड 2 में देखो, पहले राउंड 1 में 32 प्लेयर है, राउंड 2 में इसके आधे हो जाएंगे, लाइक हाफ ऑफ द 32 इज 16, so here the sum is 17. Round 3, here you will get 8 players. Okay, so sum become what, 9. Round 4, here the total number of player would be 4, so the sum going to be a 5. Round 5, or you can say final round here, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो अपने आप आ जाएगा। Here there is only 2 team, the match should be 1। ठीक है, इतना क्लियर है। ये राउंड मैंने कर लिया। अब देखो, मुझे पूछा किसका, 27 का। they asked me about a 27, and I know from here in round 1 27 took the sixth position, right? 27 going to take a sixth position because he is going to play with the sixth number people, so that it will going to make a 33, the sum should be 33, 6 plus 27 is 33। इन दोनों के बीच में मैच हुआ, ये हार गया, ये जीत गया, तो यहाँ पे आ गया ये 27 पोजीशन, मतलब सिक्स पोजीशन पे आ गया। सो इन राउंड 2 जो सिक्स पोजीशन पे रहेगा, ये रहेगा 27। ओके, टू मेक इट लाइक, अब 27 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये भूल ही जाओ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे भूल जा रहा हूँ। अब मैं सिक्स नहीं लिख रहा हूँ, सिक्स लिखते जा रहा हूँ मैं, सिक्स, सो दैट आई नो कि इट इज पोजिशन, आई एम सेइंग पोजिशन, नॉट अ नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इन राउंड 2 इट इज अ सिक्स, सिक्स पोजिशन एट। अब उसे मुझे 17 बनाना है, तो मैं इसमें किसके साथ प्ले करूंगा, आई विल प्ले हायर सीडेड, लाइक लोएस्ट सीडेड प्लेयर टू मेक 17। मैं 11 के साथ प्ले करूंगा। आई डोंट केयर 11 किसके क्या है क्या नहीं, लेट इट बी, छोड़ो। इन दिस राउंड आई एम अगेन स्टिल इन सिक्स पोजिशन, right? Still in the sixth position, I have to make a 9. And to make a 9, I have to play with the third number people. Now here, he defeated, like I defeated him, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मेरी पोजीशन क्या बन गई, थर्ड बन गई। तो मैं फोर्थ राउंड में जब गया तो मैं थर्ड पोजीशन पे था। ओके, थर्ड होता है, मैं थर्ड क्या लिख रहा हूँ, थर्ड होता है, ठीक है, TRD, थर्ड पोजीशन। तो मैं इसको हरा के मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ ना। अब मैं थर्ड पोजीशन पे बैठा हूँ, तो मैं फोर्थ राउंड में आई एम एट थर्ड पोजीशन, मैं थर्ड पोजीशन पे हूँ। अब मेरी मैच जिसके साथ भी होगी, लेट्स से 1 2 and 3 and 4, I will play with match with 2 and one will play with match 4। यहाँ से कोई भी चीज, I don't care। Now in round 5 I am at second position, I am at second position, right? And I have to play the match with one of the player, either was from round 1 or you can say 4। या तो ये वाला बंदे के साथ मुझे मैच खेलना है, या तो इसके साथ खेलना है, जो भी जीत के आगे आएगा। अब मुझे देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। एक तो 1 और 4 हो गया, खुद में ही है, 1 और 4 खुद पॉसिबिलिटी है। नाउ चेक 1 का मैच यहाँ पे किसके साथ हुआ, चेक 1 का मैच यहाँ किसके साथ हुआ, चेक 1 का मैच यहाँ किसके साथ हुआ। सिमिलरली चेक द मैच ऑफ 4,
फोर का मैच यहाँ किसके साथ हुआ, यहाँ किसके साथ हुआ, यहाँ किसके साथ। आई होप इतना तो आप कर ही सकते हो। हाउ यू कैन चेक दिस, यू कैन सिंपली चेक लाइक सम देख के। लेट्स से हियर, यहाँ तो सम तो इनका 5 है, ये तो मुझे देखना नहीं है, यहाँ तक तो मुझे देखना नहीं है। क्लोज करो, मुझे जो देखना है यहाँ पे देखना है। दिस इज व्हाट आई हैव टू सी फ्रॉम हियर। राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री मुझे यहाँ पे चेक करना है। सो नाउ चेक, टू मेक अ सम 9, to make a sum 9, one must be play with eighth number of rank player, right? One must be play with the player of eighth rank. Similarly, to make a sum of 9, here 4 will play with a 5 in this round, round 3 की बात कर रहा हूँ मैं। 9 बनाने के लिए 1 प्ले करेगा 8 के साथ, 4 प्ले करेगा 5 के साथ। So this is clear. Hope it is clear. In this round, round 2, in round 2, if I am assuming one will go there, one is going to play with the player, किसके साथ वन प्ले करेगा, 17 बनाने के लिए 16 के साथ, राइट। यहाँ पे 17 बनाना, तो 4 विल गोइंग टू प्ले विद द प्लेयर ऑफ 13th। ठीक है। अरे बच्चों क्या हुआ, सदमे में चले गए क्या? ठीक है, 13 के साथ यही बनाएगा। एंड सिमिलरली इफ वी सी, यहाँ पे 5 भी तो प्ले किया हूँ किसी के साथ, 5 ने किसके साथ प्ले किया होगा, टू मेक 17, ही मस्ट बी प्लेड विद द प्लेयर ऑफ 12th रैंक, राइट। 8th ने किसके साथ खेला होगा, 8th ने खेला होगा 17 बनाना है उसको, तो 8th में मस्ट बी, ही मस्ट बी प्लेड विद द प्लेयर ऑफ 6th, हाँ सॉरी 17 बनाना है ना, 9th रैंक। ओके, यहाँ तक क्लियर। इन राउंड वन, राउंड वन में जो था, राउंड वन में वन मस्ट बी प्लेड विद द प्लेयर ऑफ टू मेक 33, ही मस्ट बी प्लेड विद द प्लेयर ऑफ 32, 4 मस्ट बी प्लेड विद द प्लेयर टू मेक रैंक 33, इसने किसके साथ खेला होगा, 29 के साथ खेला होगा, राइट। 8 ने किसके साथ खेला होगा इस राउंड में मैच, राउंड वन में, टू मेक इट 33, 8 मस्ट प्लेड द मैच विथ, यू कैन से कितना होता है 25। 9 ने किसके साथ खेला होगा 24, यहाँ पे 5 ने किसके साथ खेला होगा, 33 बनाना है, 5 है यहाँ पे, तो ही मस्ट प्लेड अ मैच विथ 28। 12 ने किसके साथ खेला होगा 33 बनाने के लिए, 21। तो तो अब बोलोगे ये क्या कर दिया इसने एकदम से। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया कि अब जो मेरा मैच होगा ना फाइनल राउंड में, फाइनल राउंड में जो मेरा मैच होगा, किसके साथ है मेरा मैच, मेरा मैच है 27 के साथ, जो कि है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, इसका मैच जो होगा ये यहाँ तो हो सकता है 1 के साथ होगा या 4 के साथ होगा। ठीक है, 1 के साथ होगा, 4 के साथ होगा, 13 के साथ हो सकता है, 29 के साथ हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है, 12 के साथ हो सकता है, 21 के साथ हो सकता है, 28 के साथ हो सकता है, 32 के साथ हो सकता है, 16 के साथ हो सकता है। ठीक है, 25 के साथ हो सकता है, 8 के साथ हो सकता है, 9 के साथ हो सकता है, एंड 24 के साथ हो सकता है। तो फाइनल मैच मेरा जो 27 है उनका इन सब के साथ हो सकता है। ओके, होप यू गॉट द पॉइंट। ऑल्सो यहाँ से कुछ नंबर आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेट से राउंड में 27 बनाना है, तो 27 सॉरी 33 बनाना है, तो देख लो यहाँ पे किसी का सम 33 बन रहा है क्या, एक 27 प्लस 5, दो 32 नहीं बन रहा है, किसी के साथ नहीं बनेगा। तो ये सारे प्लेयर्स मैच खेल सकते हैं। नाउ यू कैन सिंपली गो टू द योर ऑप्शंस एंड सी कि इसमें से कोई प्लेयर है या नहीं। कैन नॉट बी, कैन नॉट बी रनर अप, कौन सा नहीं हो सकता रनर अप, तो देख लो भाई 28, यस ही कैन, 28 हो सकता है रनर अप, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट, 29, 29 हो सकता है क्या, हाँ 29 भी हो सकता है रनर अप, 29 इज नॉट माई आंसर। 30 हो सकता है, नो 30 नहीं हो सकता है। 18 हो सकता है, 18 यार 18 कैसे आ गया इसमें, क्या गड़बड़ी कर दी मैंने, 18 कैसे आ गया, डिड आई मिस समथिंग।
कैसे आ सकता है? 5 + 33, और सॉरी 5 + 28 इज 33, ठीक है। 12 + 21 is this, and here we see राउंड टू, तो राउंड में 5 प्लस, फिर 18 था या 28 था? आई थिंक कुछ क्वेश्चन में एरर है, कि 18 तो हो नहीं सकता है। 18 पॉसिबली पॉसिबल ही नहीं है। 18 कहीं भी नहीं है यहाँ पे। अगर 18 का अगर मैच करवा दूं मैं किसी के साथ, 33 के साथ बनाना है मुझे 18 का, तो सिंपली इट विल नथिंग बट 33 - 18 विल बी 15। 15 का मैच यहाँ पे है ही नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, 15 तो कहीं पे आ नहीं रहा है। ओके, 18 तो नहीं होगा। 18 यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, तो ये गलत है। ये सेट गलत है। यहाँ पे दो आंसर, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही मैच में क्या, दीज दीज आर द टू पीपल हु कैन नॉट बी रनर अप। वो रनर अप नहीं हो सकते हैं। ये मतलब क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, तो दो आंसर आ रहे हैं इसके। आंसर इज 30 and 18, बिकॉज दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज जो आखिरी में जा सकते हैं, हु विल गोइंग टू प्ले विद दिस पर्सन। ठीक है गाइस, होप ये समझा कैसे निकाला। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे वो इजीली और जल्दी हो जाएगा। हु कुड बी द लोवेस्ट सीड प्लेयर फेसिंग द प्लेयर सीडेड 8 इन द फाइनल्स। ना इन सेम मैनर आपको चेक करना है कि 8 पे जो है लोवेस्ट सीडेड प्लेयर कौन क्या हो सकता है, तो सिंपली आप चेक कर सकते हो। अब कैसे चेक करना है, अब इसको मैं और शॉर्ट वे में करता हूँ, मैं क्विक मैनर में, कि आपको लगे ना कि यार बहुत टाइम पास हो रहा है। सो वहाँ पे आंसर जो फर्स्ट का दो हो सकते हैं, 30 and व्हाट वी से, द 30 18। 18 वहाँ पे शायद से गलत हो, 8 होगा। या आई गॉट द पॉइंट, ये 8 है। शायद से मैंने ही बाय मिस्टेकनली मैंने 18 लिख दिया। ये 8 है, 8 है, नॉट 18। ये 8 है भाई। ओके, 8 है वो। तो 8 इज अ पॉसिबिलिटी। इफ 8 इज अ पॉसिबिलिटी, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, होप इट इज क्लियर। ऑप्शन सी इज द आंसर। वो 8 है, मैंने 18 कर दिया उसे, टाइप मतलब कॉपी पेस्ट करने में ये होगा। नहीं दिस, यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि एट्थ जो है ना, सीलेक्ट प्लेयर इन एट्थ, ये किसके साथ खेला होगा। यू कैन सिंपली फाइंड फाइनल्स में कौन गया है, एट्थ गया है। अगर एट्थ फाइनल में गया है, लेट्स चेक फॉर एट, इरेज ऑल दिस डेटा। पहले ये बताओ समझा या नहीं समझा, कि बस सब सो गए, सदमे में चले गए, क्या हो गया। अरे भाई बताओ भाई, सब सदमे में कहाँ चले गए हो? कुछ डाउट नहीं है क्या? गॉट इट। भाई इतना अच्छा समझा देता हूँ क्या मैं? मुझे डाउट हो रहा है खुद पे कि मैं समझा सही रहा हूँ या फिर इनको समझ नहीं रहा, कि बस यार बहुत बेकार टॉपिक है, ये तो नहीं पढ़ना है मुझे, इसलिए गॉट इट बोल देते, छोड़ दे। राउंड वन, एज यू नो 33 बनाना है। राउंड टू, एज यू नो कितना बनाना है? 17 बनाना है। राउंड थ्री, 9 बनाना है। राउंड फोर, 5 बनाना है। एंड राउंड फाइव, दैट इज द फाइनल राउंड। कुछ भी बना लो, तीन ही बनेगा वैसे तो। ठीक है, नाउ सिक्स्थ वाला विनर है। सिक्स्थ वाला जो पर्सन है, सॉरी सिक्स नहीं, क्या है, एट्थ। एट्थ रैंक पर्सन वॉज द विनर। इफ एट्थ वॉज अ विनर, एट्थ अगर विनर है, तो इनिशियली फर्स्ट राउंड में किसके साथ खेला होगा मैच, उसने एट ने खेला होगा मैच टू मेक 33। ही मस्ट प्लेड अ मैच विद द प्लेयर ऑफ व्हाट इज से 20 25। 25 के साथ खेला होगा।
तो एट्थ पोजीशन पे रहेंगे, ये तो हार गए यहाँ पे। तो एट्थ पोजीशन ही है, आई एम जस्ट चेकिंग फर्स्ट पोजीशन। इनिशियली क्या करना है, सिंपली पोजीशन चेक कर लो, डेट्स इट। यहाँ पे 17 बनाना है, तो 17 - 8 9, तो यहाँ पे एट्थ वाले ने 9 के साथ खेला होगा। ये हार गए, ये जीत गया। स्टिल सेम पोजीशन, पोजीशन में चेंज नहीं है, नो चेंज इन पोजीशन। यहाँ पे 9 बनाना है। अब एट्थ ने किसके साथ खेला होगा, एट्थ ने 1 के साथ खेला होगा। यू नाउ यू कैन सी, एट्थ ने 1 के साथ खेला यहाँ मैच, 1 हार गया, एट्थ जीत गया। अब एट्थ का पोजीशन क्या हो गया, एट्थ का पोजीशन अब तो 1 हो गया ना। नाउ एट इज ऑन फर्स्ट पोजीशन। ठीक है गाइस, राउंड 5 में जब वो गया तो एट्थ का पोजीशन फर्स्ट था। टू मेक इट 5, इसने किसको हराया होगा, इसने फोर्थ वाले को हरा दिया होगा। ठीक है, अब इसका मैच किसके साथ होगा इन फाइनल राउंड। ही इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, एट्थ वाला बंदा है, इसका मैच दो लोग के साथ हो सकता है। दोज आर द, यहाँ पे सेकंड पे होंगे और थर्ड पे, या तो सेकंड या तो थर्ड। नाउ चेक, अब स्टार्ट करो अपना चेक। जो चेक मेथड मैंने भी बताया था क्या चेक करना है। टू चेक, सबसे पहले मैं राउंड वाइज जाऊंगा उल्टा। मैं देखो उल्टा जाऊंगा सारे राउंड से। ठीक है, राउंड 5 तो मुझे चेक नहीं करना है कि फाइनल राउंड 5 में तो ये दो ही है, तो यहाँ पे तो कुछ सीन नहीं है, तो मैं चेक नहीं करूंगा। जो चेक करूंगा मैं यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा। रीजन बिहाइंड, इन दोनों का सम 5 है, तो ये तो मुझे चेक नहीं करना है। चेक हियर। नाउ लेट्स कम फॉर दिस वन, 9। लेट्स मेक अ 9। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 का 9 बना, अगर मेरे को 2 को 9 बनाना है, कितना आ जाएगा, क्या क्या वैल्यूज आएंगे, क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं गाइस। बताओ यार, बताते जाओ, तब मैं तभी मुझे भी इंटरेस्ट आएगा कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ रहा है। तो मुझे लगेगा आपको नहीं समझ रहा है, मैं रैंडम तुक्का मार रहा हूँ। 2 को 9 बनाना है, तो मैं इसका किसके साथ मैच करवाऊंगा, सेवेंथ के साथ, राइट। यहाँ पे 3 को 9 बनाना है, मतलब 3 का सम 9 बनाना है, तो मैं इसका मैच किसके साथ करवाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 को 9 करना 6 के साथ होगा। ठीक है, अब ये राउंड खत्म हो गया, क्लियर। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेट्स कम टू दिस राउंड। ठीक है, ये वाले राउंड पे आ जाओ। इस राउंड में जब मैं आ रहा हूँ ना, इन चारों का चेक करूंगा कि ये चारों की वैल्यू 17 कब बनेगी। अब शायद आपको समझ में आ जाए मैं क्या कर रहा हूँ। 2 की वैल्यू 17 कब बनेगी, जब 2 का मैच किसके साथ होगा। लेट्स से चेंज द पेन कलर सो दैट आपको समझ में आए क्या हो रहा है। 2 का 17 तब बनेगा जब 2 की मैच होगी 15 के साथ। 3 का 17 तब बनेगा जब 3 का मैच होगा किसके साथ, 14 के साथ। 6 का मैच कब, 6 का 14 कब, 17 कब बनेगा, जब 6 का मैच होगा किसके साथ, 6 का मैच होगा, 17 बनाना है 11 के साथ। 7 का 17 बनाना है, तो इसका मैच किसके साथ होगा, 10 के साथ। ये राउंड क्लियर, खत्म कर दिया राउंड, हमने देख लिया पूरा, चेक कर लिया। एलिमिनेट दिस राउंड। अब तो क्लियर हो रहा गाइस कि अभी भी नहीं हो रहा। अभी भी नहीं हो रहा तो भाई मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इससे बेटर नहीं समझा सकता। अब मुझे सबको क्या करना है, ये जितने भी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको क्या बनाना है, 33 बनाना है। आई हैव टू चेक नाउ 33 किसका किसका बन रहा है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि अभी भी बाउंसर जा रहा है। सो 3 का 33 कब बनेगा, हाउ यू मेक अ 33, जब इसका मैच 30 के साथ होगा। 6 का 33 कब बनेगा, जब इसका मैच 27 के साथ होगा। 11 का 33 कब बनेगा, जब इसका मैच 22 के साथ होगा। 14 का 33 कब बनेगा, जब इसका मैच किसके साथ होगा, किसके साथ, 19 के साथ होगा। 10 का 33 कब बनेगा, जब इसका मैच 23 के साथ होगा। 7 का 33 कब बनेगा, जब इसका मैच, सिर्फ समर को समझ रहा लग रहा, बाकी बाकी सो गए। अब समर को पूरा समझ में आ गया, समर बता रहा जल्दी जल्दी, बाकी सब सो गए अब। इसका मैच होगा 26 के साथ। 2 का मैच है, मेरे को 33 बनाना है, तो इसका मैच किसके साथ होगा, 31 के साथ। 15 को 33 बनाना है, तो 33 में से अगर माइनस कर दो 15, तो इसका मैच होगा 18 के साथ। सो नाउ दीज आर दी पॉसिबिलिटीज जिसके साथ इसका मैच हो सकता है, एट्थ का। होप इट इज क्लियर नाउ।
अब जाके देखो ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन क्या बोल रहा है? हु कुड बी द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग द प्लेयर सीड 8 इन द फाइनल्स। लोवेस्ट सीडेड प्लेयर, लोवेस्ट की बात किया कि कौन उसको फेस कर सकता है। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? सबसे छोटा, लेट्स चेक। एक है 31, 30, 27, 26। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 27 दिख रहा है, 28 तो नहीं है भाई। मेरे अकॉर्डिंग 28 तो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 27। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 27। होप इट इज क्लियर। समझ रहा? बता दो एक बार मुझे। एक मिनट ना गाइस। अच्छा, चलो क्लियर हो गया, क्लिस्टर क्लियर क्लियर, तो बहुत बढ़िया। अब देखो, बिकॉज ऑलरेडी इट्स बिन अ लॉन्ग सेशन, टाइम बहुत हो गया है, तो अभी के लिए ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे याद नहीं है, बट यू कैन ट्राई। हम इसको नेक्स्ट सेशन में या फिर सेशन के पहले मैं बता दूंगा। सिमिलर काइंड ऑफ सेट्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखा है, आप ये ट्राई करना। ठीक है, मैं ये आपको शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। और से एक बार मुझे पिंग कर दिया करो, अगर मैं शेयर ना करूँ कोई लाइक पीडीएफ एंड ऑल, तो मुझे एक बार पिंग कर दिया करो। तो ये है भाई सीन, इतने प्लेयर मैच खेलेंगे, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। और अगर ये समझ गया है तो दैट्स ग्रेट। ये ना समझा है तो भाई एक बार फिर से रिकॉर्डिंग, डू वॉच रिकॉर्डिंग, कि मैंने क्या किया, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स चेक यहाँ पे कितने वैसे प्लेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉसिबिलिटीज। 16 पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं। ओके, अरे भाई जिंदा हो, कुछ आना, कुछ तो बोलो, सिर्फ समरी बोल रहा है बेचारा। क्लियर क्लियर वही बोल रहा है। कंफर्म करो कितने लोग जिंदा है, जिंदा हो या नहीं। या गाइस यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस इन सेम वे। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इन बेटर वे, लाइक दीज आर दी। यहाँ पे 64 प्लेयर है, 64 प्लेयर है, राउंड्स बढ़ गए, दैट्स इट। हाँ भैया, कैट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, कि कैट का ही, कैट में मतलब सेट एज इट इज नहीं था वो। यू कैन से दिस इज, बट ऐसे कुछ सेट आ चुके हैं कैट में। दिस इज अ सेट। ठीक है, ये सारे सेट्स आ चुके हैं, मतलब बेसिक है ये। ये टफ नहीं है, आपको टफ अभी लग रहा होगा। टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली टफ लगता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, बट when you practice more you will find it is not very tough. Okay, so try the sets and we are done with this session. आज हमने बेसिक फोकस किया, वो सेट्स ट्राई करो। नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट अ राउंड रॉबिन इन नेक्स्ट, नेक्स्ट के नेक्स्ट सेशन में हम राउंड रॉबिन स्टार्ट करेंगे। देन वहाँ पे राउंड रॉबिन थोड़ा इजी जाएगा, तो वहाँ दिमाग ज़्यादा लगता है बट कैलकुलेशन इतना नहीं है। यहाँ पे दिमाग कम है एंड आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट भी करना पड़ता है, लाइक 13 - 33 एंड ऐसे निकाल सकते हो। तो ये ईजी भी है, नॉट वेरी टफ। एंड दिस इज द आवर ऑफरिंग्स, देख लेना। tabby.in पे जाओ, सब मिल जाएगा आपको। एंड दोज आर वाचिंग रिकॉर्डिंग, जस्ट ज्वाइन आवर कम्युनिटी टू गेट अ पीडीएफ और रेगुलर अपडेट्स। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन अगर आप वाईटी पे देख रहे हो तो। और अगर आपके ऐसे पीडीएफ है, जस्ट क्लिक हियर, यू विल जॉइन आवर चैनल। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, जय सिया राम।